جو معاملات ہمارے عقیدے کے حوالے سے ہے اس کو تو ہم چھوڑ نہیں سکتے. مسلمان احتساب میں کمپرومائز نہیں کر سکتے, معاملات میں کمپرومائز کرتے ہیں. معاملات میں جو چاہے اس سے کروا کیا, لیکن احتسابی معاملات کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں. وہاں تو ایک ہاتھ میں چاند دوسرا ہاتھ میں سورج میں دے دے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہاں وہاں دبکے یہ ہو جائے گا کہ یہ سال ہم واپس چلے جائیں گے اور پھر 10 سال تک کوئی بات نہیں کریں گے, لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے. یہ سارے معاملات میں کمپرومائز ہو سکتا ہے, لیکن احتسابی معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس کو سمجھنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا ہے, یہ فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ نے, انصاف نہیں کیا ہے. فیصلہ نہیں کیا ایسا نہیں ہے, فیصلہ کیا ہے اس نے, لیکن انصاف نہیں کیا, عدل نہیں کیا. یہ جو تتو تھے, جو ثبوت تھے, اس کو جو ہے قاتل نے نہیں لایا. من موجی اور آج جو شردا کی بنیاد پر یا آستھا کی بنیاد پر ایک فیصلہ ہے. رول آف لا جس کو کہتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن کو تم نے بنایا ہے, اس کانسٹیٹیوشن کی ہر سال جو پوجا ہوتی ہے, اس کی آستھا جو تم اپنے اندر رکھتے ہو, رول آف لا, جو رول آف لا جس کو کہتے ہیں, وہ سب تم نے اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے. سپریم کورٹ میں تصدیق کرتا ہے کہ جو بت رکھے گئے تھے 1949 کے اندر, وہ اینٹی نیچرل ایلیمنٹس سے رکھے تھے. میں تھوڑی 2 منٹ لے کے اپنی بات کروں گا. جو ایف آئی آر رام دوبے جو کانسٹیبل تھا, اس کا ایف آئی آر 1949 کا, اس نے باضابطہ لکھا ہے کہ 50-60 اینٹی نیشنل لوگوں نے کچھ پتھر جو ہے لگا کے مسجد کے ممبر پر رکھ دیے. دوسرے دن یہ معاملہ اٹھا کے رام پرکٹ ہو گیا ہے, جیسا ابھی کیا ہے شیولنگ پرکٹ ہو گیا ہے. یہ پرکٹ کی تھیری بہت پرانی ہے اور یہ ہر مسجد میں پرکٹ ہوگا. اب بھاگوت سمجھتے ہوں گے اس کو, اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ہر مسجد میں دیکھنا نہیں چاہیے, لیکن لوگ اس کو ہر مسجد میں دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ کہ جس طرح رام للا ماں پرکٹ ہوئے ہیں, اسی طرح شیولنگ کی پرکٹ ہو گیا ہے جیوگرافی کے اندر. یہ جو رام للا پرکٹ ہوئے ہیں, یہ جو پتھر رکھے گئے تھے, اگر کوئی جھگڑوں سے دور رہنے والا انسان ہوتا, اٹھا کے پھینک دیتا تو کیا ہو جاتا؟ مسلمان تو قانون کو پالنے والا تھا نا. انتظار کیا کہ وہ پولیس کمپلین کہیں گے کہ آپ نے کیا کیا گڑبڑیاں کی. یہ ایسے لپیٹ کے پوٹلی باندھ کے شیشے پھینک دے رہا, اسی سے تو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور اگر پرانی بات کو چھوڑ دیا جائے تو ہمارا تو طالب نے پرانی بات کو کیوں نہیں چھوڑا؟ انہوں نے تو ہزاروں سال کی پوری تعلیم کو چھوڑا. ہم تو بابر کے زمانے سے بات کرتے ہیں, بابر کی بات, وہ تو پتہ نہیں 8 لاکھ سال پرانی زمین کی بات کرتے ہیں, جبکہ کون سا دور تھا پتہ نہیں. اس دور کی پیدائش کے بارے میں بات کرتے ہیں, 8 لاکھ سال پرانی بات. اتنی پرانی بات کو اگر وہ یاد رکھتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ 12 سال کے پوزیشن اگر کسی کا ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی قانون جو ہے لاگو ہو سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے. یہ جب سے اگر ہم یہی کریں کہ 1528 سے لے کر جب سے مسجد بنی ہے, جب سے لے کر 1949 تک کتنے برس ہو گئے ہوئے؟ اتنے برس ہی تک انہیں من نہیں کیا تھا. اتنے 12 بھاگ کریں گے اس سے, اور کتنی مرتبہ 12 سال کے حوالے سے ہمارا پوزیشن ثابت ہو رہا ہے. وہاں کے اماموں کی تنخواہ, وہاں کے قاضرین کی تنخواہ کی گوشواریں موجود ہے, ڈاکومنٹری پروفس ہیں. وہاں پر اس کے زمانے میں کون امام تھا, کون مؤذن تھا, ان کی تنخواہیں کیا تھی, ان کے ریکارڈس ہیں. ایک لائیو مسجد کو جو ہے ڈھا دیا گیا, لائیو مسجد کو بند کیا گیا, ثابت کے تحت پھر ڈھا دیا. تو جب آپ 12 سال کی پوزیشن کو سویکار نہیں کرتے ہیں, اتنا 1528 سے لے کر 1949 تک, اور یہاں مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس چیز کو ہم قبول کریں. دوسری بات یہ کہ بابری مسجد کا ذکر کیوں نہ کریں, یہی تو ٹیررزم کا سب سے بڑا ایک ہے. یہ دہشت گرد کا سب سے بڑا عمل ہے. اسی کے نتیجے میں بامبے میں بلاسٹ ہوا ہے.
बॉम्बे के ब्लास्ट जो हुए हैं 1992 में, 1993 के अंदर जो ब्लास्ट हुए हैं 2 मरतबा के, वो किसकी वजह से हुए हैं? डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद की वजह से हुए हैं। ये मेहमानों को उठाकर फांसी क्यों दी गई? किस युग के अंदर जो सजा मिली है? ये बम ब्लास्ट के मामले में हुई है ना। तो ये बम ब्लास्ट की वजह तो वही बाबरी मस्जिद की शहादत हुई है। तो ये सबसे बड़ा एक्ट हुआ है टेररिज्म का। और इसी की कार से बस वापस होते हुए गोधरा का कांड हुआ है। गोधरा के ऊपर जो कुछ हालात हुए हैं, ये उसकी कोर्ट में तो यही इशू है बाबरी मस्जिद का। फिर इसकी क्यों ना डिस्कस करें? इसमें कोई राह निकलती है सोल्यूशन की, तो कोई निकाल कैसे उसको माना जाए? क्या हुआ? कंप्लेन हुई, कंप्लेन में क्या हुआ? FIR कटी तो अरेस्ट हुई क्या? कोई है तो रिकॉर्ड है उसका। 50-60 पुलिस कह रही है, 50-60 एंटी नेशनल लोग घुसते ही रहते हैं, कोई अरेस्ट नहीं है। उल्टा जो है मजिस्ट्रेट ने ताला लगा दिया है। ये अदालत में, और अदालत का खेल फिर खेला जा रहा है। अदालत का खेल फिर खेला जा रहा है। ठीक है, उसके फैसले को न मानना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। गलत फैसलों को न मानना कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं। आपने पहले काले चश्मे का सवाल किया, इसीलिए बता रहा हूँ। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 6 दिसंबर 1992 ये सबसे काला और मनुष्य दिन था, इसीलिए काला चश्मा पहना। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी जो है तो हिंदुस्तान भर में मस्जिद की शहादत का जो वक्त था 3:45 पर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। तो उसी के सिलसिले में 14 बाबरी मस्जिद की साल स्वागत के लिए और बड़े ही पुरसुकून तरीके से ये अल्लाह का जिक्र यानी अजान दी गई, ताकि मुल्क में शहर में अमन अमान कायम रहे। और साथ में ये अजान का मकसद भी यही है कि आने वाली नस्लों को ये बताना है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ था, ताकि ये याद क़यामत तक बाकी रहे। नजवी, जनरल सेक्रेटरी रजा अकेडमी औरंगाबाद। देखिए, हमारे लोकतंत्र के 70 साल तारीख में अगर कोई सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाला वाकया है तो वो इस मुल्क में बाबरी मस्जिद की शहादत है। मुसलमान इस बात को कभी नहीं भूल सकते हैं और इस अन्याय को वो अपनी आने वाली जनरेशन तक ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि इस किस्म के अन्याय की हरकतें इस मुल्क में दोबारा ना हो, किसी समुदाय के ऊपर अन्याय ना हो, किसी इबादतगाह को निशाना न बनाया जाए। इसके लिए बाज़ाब्ता 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, तो एक स्पेशल प्रोविजन किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि जहां पर जो वर्शिप है, जो इबादतगाह है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वो जहां है वो वहीं रहेगा। हम चाहते हैं, हुकूमत हिंद से मुतालिबा करते हैं कि इस एक्ट की पासबानी करे, इसका लिहाज रखे और देश को और लोकतंत्र को कमजोर होने से बचाने के लिए इस कानून के ऊपर सख्ती से अमलावरी करे। आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी मुल्क को कमजोर करने वाली ताकतें कई सारी मसाजिद को निशाना बनाने के लिए कोशिशें कर रही है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर इस देश को वाकई मजबूत लोकतंत्र बनाना है तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत काम किया जाए, ताकि तमाम लोगों को इंसाफ मिले और हर समुदाय का आदमी अपनी अपनी इबादतगाह में आजादी के साथ इबादत कर सके। 1992 को बाबरी मस्जिद ढाई गई। उसी दिन संगठना परिवर्तन का दिन था, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संगठना लिखी थी। उस दिन बाबरी मस्जिद नहीं तोड़ी गई बल्कि संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। तो ये हम आज 29 साल का अरसा गुजर चुका, हम जो है तो उसको इसका काला दिन मनाते आए हैं और इंशाअल्लाह जब तक दुनिया कायम है, ये दुनिया रहेगी, तब तक 6 दिसंबर 19 हम उसका जो है तो काला दिन ब्लैक डे मनाते रहेंगे। ये जो है सब इसलिए हमने आज ये मेमोरेंडम दिया कि हुकूमत हिंद को हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमने ये बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, हमने बर्दाश्त किया, सुप्रीम कोर्ट का हमारे फैसला हमारे खिलाफ आया, हमने बर्दाश्त किया और उफ तक नहीं किया, क्योंकि हम भी संगठन को मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं, हम कानून की जो मानते हैं। हमने इसके खिलाफ कोई मोर्चा नहीं निकाला, कोई बगावत नहीं की, बल्कि खुशी खुशी इस फैसले को तस्लीम किया। ये मेमोरेंडम इसलिए आज दिया गया कि आइंदा जैसा कि एक ये था कि 1947 के अंदर जो चीज बाबरी मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जो गुरुद्वारा था वो गुरुद्वारा रहेगा। इस तरीके से ये बताया गया था कि ये जो है तो इसमें कोई मुदाखलत नहीं की जाएगी। इसके बावजूद
बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया और हमने उसको कबूल किया कि बस सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन ये मैं आज का मेमोरेंडम इसलिए दिया गया कि आइंदा फैसला हुआ तो ये फैसले काबिल कबूल नहीं होंगे और इसके खिलाफ हम रोड पर उतरेंगे और हर तरीके से, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, बुद्ध विहार हो, किसी के खिलाफ अगर कोई ऐसे ये बनाते हैं, ऐसा तोड़मताड़ी करते हैं तो इसका जो है तो हम खुलकर मुखालिफत करेंगे और रोड पर आकर मुखालिफत करेंगे, कानूनी तरीके से इसकी मुखालिफत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हमारी पूरी टीम, हमारे शहर अध्यक्ष जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, शहर अध्यक्ष हमारे शारिफ नजबंदी साहब, हमारे नासिर सिद्दीकी साहब, आयुब जागीरदार साहब और हमारी पूरी टीम आज जो है तो हम लोग डिवीजनल कमिश्नर साहब के पास आए थे। हम लोग शासन को, प्रशासन को ये याद दिलाने के लिए आए थे कि बाबरी मस्जिद को जो शहीद किया गया उसको इस मुल्क का मुसलमान नहीं भूला है। उस घटना को इस मुल्क में रहने वाला अमन परस्त कोई भी इंसान नहीं भूला है। ये बात शासन को, प्रशासन को हम लोग याद दिलाने के लिए आज आए थे। बाबरी मस्जिद को जिस तरीके से शहीद किया गया और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जैसे कि मेरे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इन्फ्लेमेबल, यानी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट से भी जाने अनजाने या गवर्नमेंट के प्रेशर में आके गलती हो सकती है। ये बात को हम मानते हैं। जो हो गया वो हो गया, मगर आगे हमारी बात यह है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, इस मुल्क के अंदर कोई और मस्जिद को शहीद ना किया जाए। जैसे कि एक बात कही जाती है, बाबरी मस्जिद तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो ऐसे अमन के दुश्मनों को मैं पैगाम देना चाहूंगा कि हमने एक मस्जिद को जो है तो शहीद होने से नहीं बचा सकी। एक मस्जिद हमारी शहीद की गई, हमने सुप्रीम कोर्ट के नाम के ऊपर, हमने इस मुल्क के अमन के नाम के ऊपर उसको कबूल किया। इसके बाद ऐसी कोई हरकत ना हो, इसका जो है तो सारा देखरेख करने का काम शासन का है, प्रशासन का है। वही बात हमारे शहर अध्यक्ष जनाब शारिफ नजबंदी साहब ने अभी डिवीजनल कमिश्नर साहब के जो थे उनको कहा कि जो हो गया, इसके बाद ऐसा कुछ ना हो। इसकी जिम्मेदारी आपकी है, शासन की है, प्रशासन की है, पुलिस की है। जिस तरीके से आज मुल्क के हालात है, मैं चाहता हूं, मैं ये उम्मीद रखता हूं कि शासन, प्रशासन, गवर्नमेंट हमारी बात को सुनेगा। और जैसे कि हमारे शारिक भाई ने कहा कि एक GR है जिस तरीके से 1951 का, कि जो इबादत गाह है, चाहे वो मुसलमानों की इबादत गाह हो, चाहे वो हमारे दलित भाई की इबादत गाह हो, चाहे हमारे हिंदू भाई का कोई मंदिर हो, वो सब की संरक्षण किया जाना चाहिए, हिफाजत किया जाना चाहिए। और उसी तरीके से हम मांग करते हैं कि आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो और हमारे मुल्क के अंदर अमन रहे, हमारे मुल्क के अंदर भाईचारा रहे, हमारे मुल्क के अंदर मोहब्बत रहे, ये फिजा जो अच्छी है ये कायम रहे। मगर साथ ही में एक बात याद रखिएगा, शहादत बाबरी मस्जिद मुसलमान और इस मुल्क का अमन परस्त इंसान कभी भूल नहीं सकता। ये हमारे दिलों के ऊपर चोट है। हमारे आने वाली नस्लों तक हम ये पैगाम पहुंचाते रहेंगे कि किस तरीके से इस मुल्क के अंदर बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और किस तरीके से शहीद किया गया वो हम सबको याद है और आने वाली जनरेशन को वो याद दिलाते रहेंगे। यही पैगाम देने के लिए आज हम डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस आए।